like 1800 BC, and it states that this freelancing means mercenaries who've been available for fighting for any group or who can pay for their services. In a plain word, अगर आप में कोई स्किल है, आप में कोई महारत है और आप समझते हैं कि आपकी महारत की बेसिस पर आप किसी को फायदा दे सकते हैं, so you can do these type of things and you can offer your skills. So congratulations all those who signed for this global competition, as they are said, because now your skill would not be local only, you are available for the global customers, producers, entrepreneurs. एक और चीज जो मैं देख रही थी while I was discussing this idea with Zia, that what is the size of the global market when we are talking about freelancing? I have seen that in US only, and that was a latest study available of 2019. It states that 57 million people in the age of 21 to 40 has joined the freelancing market, and millennials and baby boomers and all those are joining this freelancing market. तो मेरी congratulations इसलिए भी हैं कि ये एक direction है for the future. We have to train our students not only for the coming time but for the future, which is a distant in the terms of next 10 to 15 years. लेकिन जब मैं शेयर देखती हूँ पाकिस्तान का in this freelancing, ये बहुत ही थोड़ा सा शेयर है, and we need to grow this share. लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? 3 तरह के मसाइल मुझे नजर आए हैं, तो मैंने थोड़ा बहुत देखा। सबसे पहला कि हमारे स्टूडेंट्स को अपनी स्किल्स के बारे में नहीं पता, what they can offer to the job hunters or those who want to hire their services. अच्छा, फिर इसके बाद जब आपको अपनी स्किल्स का नहीं पता तो आपको ये भी नहीं पता कि आपने उसके लिए क्या चार्ज करना है, what the payment should be for the work or the skill which you has, and how you can help a person or entrepreneur who wants to hire your service. और जब वो जॉब की सर्विसेज के लिए अपने आप को बिड करते हैं तो they don't really know कि it is not only the work for which they are bidding, but also for the taxes and for insurance and health payments. So taxes and insurance अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपकी हो सकता है कि आपकी इस वक्त जॉब मार्केट में बिड कम हो, लेकिन फॉर द टाइम टू कम you are pitching yourself for the lower turn-ups. दूसरा मेरा आपसे गुजारिश है कि ना सिर्फ आपको अपनी स्किल पता हो, बल्कि आपको ये भी, there is some voice in it, I'm sorry for this. जब आपको अपनी स्किल पता हो तो इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किस एंटरप्रेन्योर के लिए या किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहते हैं. सो स्टेटमेंट which is specific that how you can help an entrepreneur or an organization, और किस तरह से आपका previous experience can help you in writing that specific statement. Be very clear in writing the statement. और तीसरा जो सबसे important काम है, knowing the right person, कि किस फोरम पे जाके, फ्रीलांसिंग फोरम पे जाके आपने अपने आप को रजिस्टर करना है, किस तरह से आपने राइट एंटरप्रेन्योर को ढूंढना है ताकि आप उनकी मदद कर सकें. इन सारी चीजों के साथ साथ माय लास्ट इम्पोर्टेंट मैसेज टू ऑल माय स्टूडेंट्स इज दैट प्लीज कैपिटलाइज ऑन द स्किल्स. ये 4 साल जो आप एरिट के साथ गुजारेंगे और इसके साथ साथ आप ना सिर्फ एरिट के साथ ये 4 साल गुजारने में, इन 2.5 महीनों में जो कि आप एक फ्रीलांसिंग एक्टिविटी सीख रहे हैं, आप अपने आप को मनवा सकते हैं कि आप में जो स्किल हैं वो ग्लोबली रेलेवेंट हैं और उनके साथ साथ आप पैसे भी कमा सकते हैं. डोंट टारगेट फॉर ओनली आर्ली पेमेंट्स. Try to get the job of the retainers and the subcontractors
And my wishes again for the independent workers, entrepreneurs, you all are going to be, and you can set the tone which is there for everybody. Thank you very much. Over to Zia. Yes, madam, thank you very much for your kind words, and it really motivates all the newcomers who have signed this training program. Zulfikar Saab, I would request Zulfikar to जी मैं कंटिन्यू करती हूँ। yes, okay, sure madam. जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट आप लोगों ने करते जाना है साथ साथ, ठीक है? क्वेश्चन आंसर हम एंड पे लेंगे। थोड़ा सा आपको प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट के बारे में मैं बता दूं कि जो फ्रीलांसिंग के अंदर सॉरी वो इंटरनेट के अंदर थोड़ा सा इशू आ गया था। प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे कि जुल्फ़िकार ने पहले मेंशन किया कि कोविड की वजह से हमारे जो सेंटर्स थे वो डिजिटल चले गए थे, और हम लोगों ने विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम उन सेंटर्स को डिजिटली जब हम लेके गए, हमने 3 बैचेस अपने रन किए, ठीक है? और उस 3 बैचेस के अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट 2200 के करीब हमारे ग्रेजुएट्स हुए, और जिनकी अर्निंग बिल्कुल इनिशियल स्टेज से हम उनको लेके गए हैं, और बिल्कुल फ्रेश वो लोग थे, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि उनकी अर्निंग जो थी $4,44,000 ये उनकी अर्निंग रही है, और ये बहुत बड़ी एक अमाउंट है। आई गेस आप लोगों को भी इस स्टैट्स को सुन के मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है? अगर वो लोग कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? और मेरे ख्याल से अगर हम ऑन एवरेज 2200 के ऊपर ये निकालें तो कितनी ज़्यादा बड़ी अमाउंट बनती है। और ये हमारी बेसिक जो सैलरी है आजकल के आप लोग टेन्योर में देखेंगे कि 30-40,000 से ज़्यादा आप लोगों को नहीं मिलती, वो भी एक्सपीरियंस लोगों को। और इस फ्रीलांसिंग की, इस प्रोजेक्ट की खूबसूरती यही है कि इसके अंदर आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप लोगों ने आना है, जस्ट 3 मंथ्स के अंदर अपनी डेडिकेशन शो करनी है, मोटिवेशन शो करनी है, और कंसिस्टेंट रह के हम लोगों के साथ रेगुलर क्लास लेके आप लोग इससे स्किल हासिल करें। और जिस तरह से अभी मैंने आप लोगों को बताया कि उन लोगों ने इतना अर्न किया, तो आप लोग भी अर्न करें, ठीक है? हमारे जो फर्स्ट बैच की भी ऑलमोस्ट अभी जो एरिट्स हमारे ग्रेजुएट हुए हैं वो 5000 प्लस जो है वो अर्निंग हुई है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे जो हमने ट्रेनर्स भी रखे होते हैं वो वन ऑफ द बेस्ट टॉप फ्रीलांसर्स होते हैं अपने डोमेन के अंदर, ठीक है? तो अवेलेबल होंगे ये आप लोगों के साथ। और इस प्रोजेक्ट की जो एक डिफरेंट बनाता है दूसरे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट से, इसका जो कंपेटिटिव एज ये है कि हम एक लाइफ टाइम रिलेशनशिप आप लोगों के साथ बिल्ड करते हैं, ठीक है? 3 मंथ्स के लिए नहीं है ये लाइफ टाइम का आपके साथ रिलेशनशिप है, जिसके अंदर आप जब आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप अपने ट्रेनर्स को अप्रोच करते हो तो वो आपको आंसर करते हैं। आपके फेसबुक ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ पे कम्युनिटी बन गई है पूरी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी। और प्लस जब आप ग्रेजुएट होगे तो हमारे पास NFTP का एलुमनाई भी है, ठीक है? तो उसमें आप लोग ऐड हो जाओगे, वहाँ पे ऑर्डर्स भी बच्चे आउटसोर्स करते हैं, और प्लस अगर कोई मसला मसाइल हो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। तो वहाँ पे काफ़ी हमारे ट्रेनर्स भी, हम लोग भी, और बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है? तो आई गेस काफ़ी ज़्यादा लंबा लेक्चर मैंने दे दिया है, और अब मैं इनवाइट करूँगी मोहम्मद अमजद को कि वो आएँ और थोड़ा सा ग्रेजुएशन क्राइटेरिया के बारे में बताएं। थैंक यू मिस रेशम। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज मुझे कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ क्लियर है? जी। ओके, थैंक यू। सबसे पहले मैं तमाम कैंडिडेट्स को NFTP के जो सेकंड बैच है उसकी ओरिएंटेशन पे वेलकम कहता हूँ। जैसे कि आप लोगों को जुल्फ़ार ने भी बताया, कुछ ज़िया साहब ने भी बताया प्रोग्राम के हवाले से, जो NFTP है बेसिकली जॉइंट एडवेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ IT और PITV का, और इसके साथ जो हमारे पार्टनर हैं एरिड यूनिवर्सिटी, जिसके ताउन के साथ हम ये इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं।
अच्छा, ये जो हमारा कोर्स होगा जिसमें आप लोग इनरोल हुए हैं, इसकी ड्यूरेशन 3 मंथ है। हफ्ते में आपकी 5 क्लासेस होंगी और 2 आवर की आपकी क्लास होगी। जो क्लासेस का टाइम है वो कुछ इस तरह से होगा कि 2:30 से 4:30 बजे तक आपकी टेक्निकल की और जो डिज़ाइन की क्लास है वो होगी। उसके बाद जो तीसरी क्लास आपकी कंटेंट की है वो आपकी 5 से 7 बजे आपकी क्लास होगी। ये आपकी क्लासेस का जो स्केड्यूल है वो कुछ इस तरह से ही होगा। उसके अलावा आप लोग इनरोल हुए हैं तो किन बच्चों को हम कह लें कि ग्रेजुएट करेंगे, उसका क्राइटेरिया क्या है, कौन से बच्चे जो है एनएफटीपी का जो सर्टिफिकेट है वो हासिल करेंगे। उसमें से हमारे पास 3 चीज़ें हैं क्राइटेरिया में। जो बच्चा इन 3 चीज़ों पे फॉलो कर रहा होगा उसको हम ग्रेजुएट मार्क कर रहे होंगे। फर्स्ट उसकी है अटेंडेंस। उसकी अटेंडेंस पूरे कोर्स में मिनिमम 80% होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे है फ्रीलांसिंग प्रोफाइल। फ्रीलांसिंग प्रोफाइल ये आपके जो ट्रेनर्स आपके साथ हैं वो आपको मुख्तलिफ पोर्टल पे प्रोफाइल बनाना सिखाएंगे। वो प्रोफाइल आपने अपने ट्रेनर को सबमिट करवानी है। और थर्ड नंबर पे है ग्रेजुएशन टेस्ट, जो कि इस बैच के एंड पे, मतलब आपकी जब क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी तो हम एक टेस्ट लेंगे जो कि ग्रेजुएशन टेस्ट होगा। जो बच्चे उसको अटैम्प्ट करेंगे उनके जो मार्क्स होंगे वो भी उसके क्राइटेरिया में ऐड हो जाएंगे। ये तो हमारा ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया था। अच्छा, जिस तरह आपको बताया जा रहा है कि फ्रीलांसिंग बेसिकली स्किल बेस्ड जॉब है। हर इंसान को अल्लाह ने कोई ना कोई स्किल दिया हुआ है। तो आप लोग आए इस प्रोग्राम में, हमारे जो ट्रेनर हैं वो एक्सपर्ट हैं, वो आपका जो स्किल है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करके फिर आपको उसी स्किल को यूटिलाइज करते हुए आप किस तरह अर्निंग कर सकते हैं वो आपको बताएंगे। दूसरा, ये जो प्रोग्राम है, ये जो अपॉर्चुनिटी है खासकर फीमेल के लिए, मैं कहूँगा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जिनको जॉब का इशू है, घर से बाहर मतलब आने जाने पे उन पे कोई पाबंदी होती है। तो ऐसी फीमेल्स इस प्रोग्राम के तहत फ्रीलांसिंग सीख के घर बैठ के अर्निंग कर सकती हैं और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकती हैं। और कुछ मेल भी ऐसे होते हैं जो 9 to 5 जॉब पसंद नहीं करते, या फिर जो बॉसेस हैं उनको नहीं पसंद करते। उनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि वो फ्रीलांसिंग सीखें, अपनी मर्जी की टाइम पे काम करें और अपनी मर्जी के बॉस के साथ भी वो काम करें। तो आई होप आप लोग आए हैं, कोई ना कोई आप अपना मकसद लेके आएंगे। और मकसद डेफिनेटली यही है कि आप लोग यहाँ से सीखें और कमाना शुरू करें। तो हम सब की दुआएं आपके साथ हैं, आप इंशाल्लाह सक्सेसफुल रहेंगे। अगर अगर किसी बच्चे ने अपनी कोर्स के दरमियान 80% अटेंडेंस मेंटेन की है तो हमारा ये एक्सपीरियंस है, देखना है कि उस बच्चे ने ड्यूरिंग द कोर्स अर्निंग स्टार्ट कर दी है। तो वंस अगेन वेलकम यू ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अमजद, आपने हमें डिटेल में चीजें बताई और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया। थोड़ा क्वेश्चंस आपके हम इंशाल्लाह आखिर में लेंगे, आपके सारे क्वेश्चंस लेंगे और आपकी जो भी आपके माइंड में एम्बिग्विटी है वो इंशाल्लाह हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट में तो ऑनलाइन होगी मगर बाद में फिजिकल हो जाएंगी। तो क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन थी कोविड की वजह से, तो गवर्नमेंट जो है वो क्लोज डाउन थी। तो इंशाल्लाह जिस तरह यूनिवर्सिटीज ओपन होती हैं तो हम इसको जो भी शुरू में ऑनलाइन होंगी उसके बाद हम इसको फिजिकल क्लासेस में शिफ्ट कर देंगे। और इंशाल्लाह ये यूनिवर्सिटी के लैब में आपकी क्लासेस होंगी और फेस टू फेस इंटरेक्शन भी होगा आपका, और ट्रेनर भी वहाँ अवेलेबल होंगे जो कि आपको स्किल सिखाएंगे। अब मैं इनवाइट करूंगा, हमारे साथ मास्टर ट्रेनर हैं इमरान भट्ट साहब, जो कि क्रिएटिव डिजाइन के मास्टर ट्रेनर हैं और माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस एज अ फ्रीलांसर खुद भी हैं और बड़ा उनका माशाल्लाह तजर्बा भी है। और वो ट्रेनर्स को देखते हैं क्रिएटिव डिजाइन के। तो वो मैं उनको इनवाइट करूंगा कि वो आएँ और थोड़ा सा बताएं थोड़ा फ्रीलांसिंग के बारे में और थोड़ी सक्सेस स्टोरी बताएं, अपनी भी बताएं, क्योंकि वो माशाल्लाह खुद भी एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर हैं। जी इमरान भट्ट सर। सबसे पहले आवाज का बता दीजिएगा सर, आवाज क्लियर है? जी आवाज के लिए। थैंक यू सो मच जुल्फकार साहब, एंड थैंक यू सो मच फॉर एनएफटीपी टीम एंड एज वेल यूनिवर्सिटी मेंबर्स एज वेल। अच्छा जी, स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको वेलकम भी करूंगा और कॉन्ग्रेचुलेशन भी। आवाज किसको नहीं आ रही, काइंडली अगर किसी को नहीं आ रही तो रीचेक कर लें।
मेरी साइड से तो आवाज ठीक है आई थिंक। जी आपकी तरफ से क्लियर है? माइट बी हाँ जी। उस कैंडिडेट की तरफ से जो होगा कोई प्रॉब्लम होगा, इंटरनेट प्रॉब्लम। ठीक हो गया, ओवरऑल सही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करूंगा और वेलकम भी करूंगा जितने हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, और मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों से शेयर करूंगा और आपको कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूं ताकि आप इनकरेज फील करें और इस कोर्स को अच्छे तरीके से जो है वो कंप्लीट भी करें और इसके बेनिफिट्स भी ले सकें। तो जैसे कि मेरा नाम बताया, इमरान हारून मेरा नाम है। लास्ट 14 और 15 ईयर्स से आई एम बिलोंग्स टू फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री और थाउजेंड ऑफ क्लाइंट्स को मैं इंटरनेशनली अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सर्व कर चुका हूँ। और आई हैव माय ओन डिज़ाइन एजेंसी। प्लस ये है कि लास्ट 3 ईयर से मैं ई रोजगार के साथ भी एसोसिएट हूँ। मैं इंटरनेशनली कॉन्टेस्ट भी पार्टिसिपेट करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 100 ऑफ कॉन्टेस्ट में विन भी किए हैं। ठीक है, और दूसरे जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उन सारे प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। 2-3 चीज़ें हैं जो कि अगर आप फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं और एज ए फ्रीलांसिंग को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोगों ने करनी है। ठीक है, एक नंबर 1 आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने जब ये काम स्टार्ट करना है सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। जब तक आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। जब आप छोड़ देंगे कोई चीज़ या आप इसको ऑन एंड ऑफ करेंगे फिर आप रिजल्ट्स नहीं ले सकते। रिजल्ट्स तभी आएंगे जब आप कंसिस्टेंट होके काम करेंगे। दूसरा, आपकी लाइफ में पेशेंस का होना बड़ा ज़रूरी है और फ्रीलांसिंग के अंदर पेशेंस बड़ा मैटर करता है। कोई चीज़ ओवरनाइट नहीं होगी, आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, उसके रिजल्ट्स के लिए आपको एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो ये चीज़ें आपको हर्ट करेंगी। आपको प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करना पड़ता है, क्लाइंट का फीडबैक आता है, काम के मुताबिक आपका फीडबैक अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। बाज़ लोगों को प्रोजेक्ट जल्दी मिल जाते हैं, बाज़ को थोड़ी देर से मिलते हैं। तो और जैसे डिज़ाइनिंग की बात करें तो क्लाइंट बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है चेंजेस की, तो पेशेंस जो है वो आपका बड़ा काउंट करता है। और नंबर 3 तीसरी जो एक हैबिट है वो आप जो हमारे स्टूडेंट्स में ज़्यादा पाई जाती है और जो हमारी आप बेसिकली फ्रीलांसिंग जब आप करते हैं तो यू आर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आप जो है अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह नहीं है कि सिर्फ आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे और उसमें अगर प्रोजेक्ट अच्छा हुआ तो क्लाइंट अप्रिशिएट करेगा, अगर अच्छा नहीं हुआ तो वो सिर्फ आपको क्रिटिसाइज करेगा। ऐसे नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें जनरली अगर आपका किसी बंदे के साथ अच्छा या एक्सपीरियंस अच्छा होता है या बुरा होता है तो आप उसके कंट्री को जरूर याद रखते हैं। वो पाकिस्तानी ऐसा था, वो इंडियन ऐसा था, वो बांग्लादेशी ऐसा था। इसी तरह बाहर के लोग भी सोचते हैं। अगर आप अच्छा काम करेंगे वो आपको रेफर भी करेंगे, प्लस हमें एज ए नेशन भी वो अच्छा मार्क करेंगे कि एक इमरान था वो पाकिस्तान से था, ही डन अ वेरी गुड जॉब। बट अगर इसके रिवर्स में करूं कि मैं कहूं कि पाकिस्तान से था और उसने अच्छा काम नहीं किया तो एक जो बताने वाला होगा वो ये बताएगा कि एक बंदा था, अगर वो नाम भूल भी जाए तो आपकी नेशनैलिटी से आपको क्रिटिसाइज कर सकता है कि उस पाकिस्तानी ने मेरे साथ काम अच्छा नहीं किया। तो मेरा इस बात बताने का मकसद ये है कि जब आप काम करें तो एक्सक्यूज ना दें, अपने क्लाइंट्स को कभी एक्सक्यूज ना दें कि मेरी बिजली चली गई, लाइट चली गई, मेरा कंप्यूटर चला गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। कोशिश करें कि आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए इट शुड बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। कि आपको कोई प्रॉब्लम आया, आपने उसको सॉर्ट करने के लिए क्या चीजें की है। मैं किसी दोस्त के पास चला गया, मार्केट गया, रात को सोया नहीं, मैंने अपने क्लाइंट को प्रायोरिटाइज करना। लाइफ में जब आप चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं तभी आप सक्सेसफुल होते हैं। अगर आपकी ये लीस्ट प्रायोरिटी होगी कि मैं फ्रीलांसिंग करूं तो फिर आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। जब आप काम करें तो अपना एक टाइम टेबल ज़रूर बनाइएगा कि कम से कम अगर हम एक नॉर्मल जॉब की बात करते हैं, ठीक है, अगर वो 8 आवर्स है और अगर हम फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करते हैं पार्ट टाइम तो कोशिश करें कि मिनिमम 4 आवर्स आप लाजमी दीजिएगा। और आप उसमें जो आपके पास जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इस वक्त इस प्रोग्राम के अंदर, जो आपके पास ट्रेनर्स हैं
वो वेरी मच स्किल्ड, वो खुद इतना ही एक्सपीरियंस रखते हैं, 5-10 साल का एक्सपीरियंस, उन्होंने 1000 ऑफ जॉब्स ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। वो आपको एक एक इन एंड आउट बताएंगे कि प्रोजेक्ट पे कैसे अप्लाई करना है, स्किल कैसे डेवलप करनी है, स्किल को डेवलप करने के लिए किन टूल्स को आपको सीखना जरूरी है। तो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उन तीनों चीजों को साथ लेके चलेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, पेशेंसली काम करेंगे और एक्सक्यूज नहीं देंगे, ठीक है, तो आई विल गारंटी इंशाल्लाह कि आप देखेंगे कि 2.5 मंथ्स के अंदर आपके एक जबरदस्त हेल्दी रिजल्ट्स आएंगे। और रिजल्ट से मुराद है कि आपकी प्रोफाइल भी बनेगी अच्छी, आपके नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट होंगे और सबसे एट द एंड आपको डॉलर्स में अर्निंग भी होगी, ठीक है। और आप लोगों की मोटिवेशन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि मैं खुद भी ट्रेनिंग करता रहा हूँ ई रोजगार में, तो जो स्टूडेंट का एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर कितने नंबर ऑफ डॉलर्स या कितनी हम अर्निंग कर सकते हैं, तो फ्रैंकली इसकी कोई लिमिट नहीं है, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप में कितना पोटेंशियल और आप खुद कितना अर्न करना चाहते हैं। मैं आपको अपनी एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जैसे काम करता हूँ, तो मैं लोगो डिजाइन के कॉन्टेस्ट भी पार्टिसिपेट करता हूँ। वहां पे मिनिमम एक कॉन्टेस्ट जीतने की प्राइस मिनिमम $200 है और एक लोगो कॉन्टेस्ट की हाईएस्ट प्राइस है $1500। यानी कि आप एक कॉन्टेस्ट से 30,000 रुपया मिनिमम कमा सकते हैं और एक ही कॉन्टेस्ट से आप मैक्सिमम 1.5 से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। अब आप इसको खुद ही मल्टीप्लाई कर दें कि अगर मैं पर डे सिर्फ एक कॉन्टेस्ट भी जीतूं तो 30 डेज है महीने के अंदर, तो मैं कितनी मैसिव अर्निंग कर सकता हूं एक स्किल को सीख के, ठीक है। इसी तरीके से पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहें आप पैसे कमा सकते हैं। शर्त एक ही है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, अपनी क्लासेस को स्किप नहीं करना। 80% जो अटेंडेंस है वो बेसिकली उसका मकसद ही यही है कि आप जब रेगुलर आएंगे तो आप चीजें सीखेंगे, अगर आप एब्सेंट होंगे तो आपकी चीजें स्किप होती जाएंगी और फिर आप क्लास को मीट नहीं कर सकते। तो मेरी बेस्ट विशेस भी आपके साथ हैं, मैं खुद भी इंशाल्लाह अवेलेबल रहूंगा आप लोगों के साथ। जो मेरी डोमेन है उसमें आपको इंशाल्लाह गेस्ट लेक्चर भी दिए जाएंगे, मजीद मोटिवेट भी किया जाएगा, इनकरेज किया जाएगा, ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर हो सकें और एज ए नेशन वी मेक आवर नेशन प्राउड, ठीक है। सो वेरी बेस्ट ऑफ विशेस एंड थैंक यू सो मच एनएफटीपी टीम एंड यूनिवर्सिटी एज वेल। थैंक यू। थैंक यू सो मच इमरान साहब, आपने माशाल्लाह बड़ी पते की चीजें बताई और आई होप के जब स्टूडेंट्स जो हैं उसको फॉलो करेंगे और एक बेहतरीन जो है फ्रीलांसर बनेंगे। हाँ, थोड़ा यही होता है, कंसिस्टेंट होना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस जो है वो आपको मजीद अगर है तो और मजीद करना पड़ता है, क्योंकि आपको फॉरेन ऑर्डर्स नहीं आते, टाइम लगता है। आप ये नहीं होगा कि आप विदिन 1-2 हो भी सकता है, क्योंकि बड़े स्टूडेंट्स हैं जो कि फर्स्ट मंथ में भी ऑर्डर्स लेना शुरू कर देते हैं और कुछ होते हैं जो उनको 6 मंथ्स या 1 साल का टाइम लगता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने मोटिवेट हो और आप कितनी आप में कैपेसिटी है, तो आप इंशाल्लाह आप लोग भी सब जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा नहीं लूंगा, तो मैं अब जो है इनवाइट करूंगा जुबैरुद्दीन जो कि हमारे टेक्निकल ट्रेनर हैं, ताकि वो आए और अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और थोड़ा अपने डोमेन के बारे में बताएं, थोड़े से टाइम लें। जी जुबैर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सर मेरा नाम जुबैर है, जैसे कि जुल्फकार साहब ने बताया, और मैं एरड यूनिवर्सिटी में आपको एज अ टेक ट्रेनर, यानी जो टेक डोमेन के जितने भी लोग होंगे मैं उनको ट्रेनिंग करूंगा। सही है। कोर्स के बारे में यह है कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सही है। उसके लिए कोई लाजमी नहीं है कि आपके पास टेक का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन अगर है तो ये ज्यादा अच्छी बात होगी, लेकिन नहीं होगी तो हम उसको भी कंपनसेट करेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास तकरीबन 2 मंथ या 3 मंथ के दरमियान 50 लेक्चर्स होते हैं हमारे पास, और हम इसमें प्रोफाइल्स बिल्डिंग से लेके प्रपोजल सेंडिंग तक और डॉलर की अर्निंग तक हम सारा प्रोसेस देखेंगे। सही है। और बेसिक लेवल से काम स्टार्ट होगा और पहले मंथ तकरीबन बेसिक होगा, फिर थोड़ा सा एडवांस, और आखिरी मंथ में हम इसको मेजर एडवांस की तरफ लेके जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे साथ काम करेंगे और जो मैं आपको कहूँगा वो आप लोग मुझे डिलीवर करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। सही है। जब हमने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, इमरान साहब ने जिस तरह बताया, इन्होंने काफ़ी अरसा हो गया,
तब कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं था, सही है, जो इस तरह की चीज हमें गाइडेंस देता। तो ये सारी चीजें हमने खुद फिगर आउट की कि हमने क्लाइंट से किस तरह बात करनी है, हमने क्लाइंट को क्या कहना है, हमने किसको क्या कितना रेट देना है, अगर हमें लगे कि रेट ज्यादा है तो रेट कम किस तरह करना है, या इस तरह की बाकी सारी डिस्कशंस वो सारी हमने खुद की, सही। लेकिन आप लोगों के पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ई रोजगार और NFTP जो इस टाइम फेडरल लेवल पे चल रहा है, उससे पे उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें सिर्फ मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरे साथ मैम सलमा और मुनीब साहब, सही है, वो दोनों अवेलेबल हैं जो कि दोनों डोमेन्स को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप हमसे क्वेश्चन पूछें या मेरे से पूछें या उनसे पूछें, अगर हम में से किसी को भी आपकी क्यूरी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो वो हम इंशाल्लाह आपको क्लियर करेंगे, सही है। तो जो कोर्स का डिटेल इंट्रोडक्शन है वो इंशाल्लाह कल जो हमारी पहली क्लास है, जिस तरह जुल्फकार साहब ने आपको टाइमिंग अनाउंस कर दी है, उस पे टाइम इंशाल्लाह जूम पे हम ऑनलाइन होंगे। स्टार्ट में कुछ क्लासेस फिजिकल हैं, ऑनलाइन है, क्योंकि कोविड की वजह से यूनिवर्सिटी बंद है, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह अगले वीक में जब यूनिवर्सिटी ऑन हो आई थिंक प्रॉब्लम होगी है जुबैर के इंटरनेट कनेक्शन में, तो काफ़ी उन्होंने चीज़ें बता दी हैं। इंशाल्लाह कल से क्लास स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको डिटेल में वो कोर्स आउटलाइन भी बताएंगे क्या क्या वो चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। तो हमारे इस प्रोग्राम की खसूसियत ये है कि एक तो ये प्रोग्राम जो है वो फिजिकल है, मतलब ऑन हैंड ट्रेनिंग दी जाती है, और इसमें ये होता है कि हमारे ट्रेनर्स खुद फ्रीलांसर्स होते हैं। उसमें ये नहीं होता कि वो थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाएंगे, मगर थ्योरेटिकल भी पढ़ाएंगे, मगर ज़्यादा उनका फोकस ये होगा कि आपको जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाए। तो इंशाल्लाह आप ये क्लासेस लेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आप लोग जो है वो मतलब 3 मंथ्स के बाद एक चेंज महसूस करेंगे कि आपके पास एक स्किल आ जाएगा। तो आप घर बैठे अपने एम्प्लॉयर खुद होगे, ना किसी की इसमें ये देखें ना, फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा एक खुसूसियत और इसका फायदा ये होता है कि आप घर बैठे कहीं भी अपना आपका लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, कहीं बैठ के भी आप जो है फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, बेशक वो दिन हो या रात हो। उसमें ये नहीं होता कि आपने 9 to 5 ऑफिस जाना है और वो एक जो है वो लिमिटेड सी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो इसमें ये है कि आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह लेकर चलते हो, अपने अपने टाइम किस तरह मैनेज करते हो। तो अब मैं जो है इनवाइट करूंगा हमारे जो क्रिएटिव ट्रेनर है मुबीन, ताकि वो अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और थोड़ा सा अपने ब्रीफ बता दें अपने कोर्स के बारे में। जी मुबीन। मुझे कंफर्म कर दीजिएगा आवाज आ रही है? जी मुबीन, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम है मुबीन जफर एंड आई एम डूइंग फ्रीलांसिंग फ्रॉम लास्ट 5 years since 2016 in graphic designing. First of all, I would like to thank NFTP team and Edit University staff के उन्होंने मुझे इतनी great opportunity दी to share my experience with you people. And secondly, I would like to congratulate all of you and to become a part of this great journey. And I would like to give my best wishes to you. And I guess के I hope के आप लोग इस अपॉर्चुनिटी से पूरी तरह फायदा उठाएंगे। तो अगर हम बात करें ट्रेनिंग की, तो इट्स 3 month ट्रेनिंग जिसके 2 पार्ट्स हैं। इन फर्स्ट पार्ट हम 2 पार्ट्स हैं जिसके अंदर एक पार्ट है फ्रीलांस स्किल्स एंड जो सेकंड पार्ट है उसका है टेक्निकल स्किल। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम सीखेंगे, हम ट्रेनिंग सीखेंगे, मैं ट्रेन करूंगा आप लोगों को और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अबाउट फ्रीलांसिंग। डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, लाइक हमारे पास फाइवर है, अपवर्क है, 99 डिजाइन है, इस तरह इवन फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। तो हम उसके ऊपर अपनी स्किल को और सर्विसेज को कैसे सेल आउट कर सकते हैं और कैसे हम ऑर्डर्स गेट करेंगे, कैसे गिग्स बनाएंगे। तो दिस इज फ्रीलांस स्किल पार्ट। जो सेकंड पार्ट है वो टेक्निकल है एंड जो डोमेन मेरे पास है उसका टाइटल है क्रिएटिव डिजाइन। मोस्ट जनरली अगर बात करें तो इस जो टर्म्स यूज होती है इट्स ग्राफिक डिजाइन। उसके अंदर कुछ मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं, एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी फोटोशॉप, इसी तरह कुछ एडोबी के और हैं, इनडिजाइन है, एक्सट्री है। हम उनको सीखेंगे कि उनकी टूल्स एंड टेक्निक्स क्या हैं। एंड देन हम डिज़ाइन के ऊपर सीखेंगे कि हम एक लोगो कैसे डिज़ाइन करते हैं, लोगो डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है। देन बिजनेस कार्ड्स हैं, फ्लायर्स हैं, इस तरह हमारे पास इवन फेसबुक, इवन वेबसाइट डिज़ाइंस हैं, उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन है। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर हम टेक्निकली, जो टेक्निकल पार्ट है उसके अंदर हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे।
So again, I would like to congratulate all of you once again, and my best wishes are with you, and I hope कि आप लोग इससे जितना पॉसिबल है उतना फायदा उठाएंगे. Thank you, Zulfikar साहब. थैंक यू मुबीन, विश यू बेस्ट ऑफ लक। और आपको ये पहला बैच है तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा गुजरेगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चे ग्रेजुएट्स होंगे और उनको स्किल सीखने को मौका मिलेगा तरफ से। जी हमारे जी थैंक यू। अच्छा हमारे थर्ड जो है वो ट्रेनर मैडम सलमा नूरीन है जो कि कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट जो है वो इंशाल्लाह आपको स्किल सिखाएंगे उसमें। जी मैडम सलमा, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं अभी इस वक्त एटलीस्ट कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी। मैं काफी देर से बिल्कुल रेडी थी, सबसे बात करना चाह रही थी, बट उस तरह से हमारा अभी इंटरेक्शन हो नहीं पाया। इंशाल्लाह कल से हो जाएगा। सो सबसे पहले तो ये कि अस्सलाम वालेकुम, और जो भी कुछ बोलना चाहता है, क्योंकि आप लोग मेरी तरह काफी देर से खामोश होंगे, तो आप लोग अपने माइक ओपन करके मेरे साथ साथ बोल सकते हैं और हम लोग थोड़ी देर बातें कर सकते हैं, ठीक है। जब तक आप लोग अपने बोलने का सोचते हो, मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं। या एक क्वेश्चन आता है जो कि हमेशा हमने फेस किया, वो है कि हमारे लिए टेक फील्ड बेहतर है, क्रिएटिव फील्ड बेहतर है, नॉन टेक फील्ड बेहतर है, कौन सी बेहतर है, किस में ज्यादा पैसे हैं, किस में कम वक्त लगाना पड़ता है, कौन सी इजी पीजी है सीखना। मुझे ये लगता है कि मोस्टली न्यू जो फ्रीलांसर्स होते हैं उनका ये क्वेश्चन होता है। तो मैं सबसे पहले आपको इस चीज का थोड़ा सा हल्का सा इंट्रो देना चाहती हूँ, जब तक आपके पॉइंटर्स बनते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हो। आई होप कि जुल्फिकार भैया मेरे पास काफी टाइम है, मैं बोल सकती हूँ कुछ भी। सलमा हमारे पास बहुत कम टाइम है क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन एंड आंसर्स भी लेने ट्रेनिंग्स के, तो थोड़ा सा मैं कर दें। कल से आप बेशक कल आपके पास टाइम होगा तो लेक्चर में आप बेशक क्योंकि हाँ जुल्फिकार भैया जो तीनों डोमेन्स के साथ बात करनी है मैं वो आज कर लेती हूँ, कल से मैं अपनी क्लास से बात करूंगी ना, इसलिए। तो क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, क्योंकि जिया साहब भी और मैडम नादिया ताहिर और बाकी सब लोग भी जो है वो 1 घंटे से ऑनलाइन है, तो हम चाहेंगे कि अब थोड़ा हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के पास को फिर वाइंड अप करें। तो काइंडली आप थोड़ा इंट्रोडक्शन अपना करवा के थोड़ा सा कंटेंट मार्केटिंग का बता के तो काइंडली थोड़ा करें तो मैंने ठीक है, अमेजिंग हो गया, मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा कंटेंट मार्केटिंग का ये है कि हम लोगों ने जो ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या हम कवर करने वाले हैं क्या नहीं, तो वो तो इंशाल्लाह मैं कल ही अपने जो हमारे ट्रेनिंग्स होंगे उनको बहुत डिटेल में गाइड कर दूंगी। अबाउट मी कि मैं क्या करती हूँ, मैं कब से एक्टिव हूँ, तो मुझे अराउंड 13 इयर्स हो चुके हैं मैं एज अ फ्रीलांसर, और 4 इयर्स हो चुके हैं मैं एज अ ट्रेनर। ट्रेनिंग मेरा पैशन है, 2013 से मेरा ड्रीम था कि मैं लोगों को एम्पावर करूँ। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो मेरा ट्रेनिंग प्रोफेशन है वो जस्ट सैलरी के लिए या बाकी चीज़ों के लिए, ये मेरा ड्रीम था कि मैं आऊँ और आके लोगों से अपनी जो भी मैंने स्ट्रगल की एज अ फ्रीलांसर, जो मुझे मुश्किलें देखनी पड़ी, वो आके लोगों से शेयर करूँ। क्योंकि होता क्या है कि जो मैंने 13 इयर्स लगा के अप्स डाउन्स देखे, जो मैंने ब्लंडर्स मारे, जो मेरी रीजंस बनी फेलियर्स की, या जो भी इश्यूज मैंने देखे, ठीक है, अगर आप लोग मुझे अपने 2.5 महीने 3 महीने देते हो तो क्या होगा कि एटलीस्ट मैं आपको उन ब्लंडर्स से बचा लूंगी। मैं आपको बता दूंगी कि अच्छा प्रपोजल राइटिंग में ये लिखते हो तो ये इसका ये हो सकता है सर, अगर इसकी जगह ऐसे कर लोगे तो डिफरेंट चीजें हो जाएंगी। तो जो ट्रेनर होता है उसके साथ ज्यादा लिंक करने का जो आपका फायदा होता है वो आपको यही फायदा होता है कि वो अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड कर रहा होता है, वो कोई बुकिश बातें नहीं बता रहा होता, उसने जो चीजें एक्सपीरियंस की होती हैं वो बातें आपको बता रहा होता है। अगेन ट्रेनिंग का भी मेरा कोई न्यू एक्सपीरियंस नहीं है, स्पेशली माशाल्लाह से जो लास्ट बैच है वो भी गया और बहुत शानदार गया। ये वाला बैच भी बहुत उम्मीद है कि जैसे अगर आप लोग थोड़ा सा भी साथ देंगे तो बहुत ज्यादा शानदार जाने वाला है। जुल्फिकार भैया मेरे तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच सलमा, आपने इंट्रोडक्शन करवाया और इंशाल्लाह कल से स्टार्ट होंगी, तो आप जो कि माशाल्लाह आपके पास एक्सपीरियंस है फ्रीलांसिंग का वो इंशाल्लाह आप जरूर पास ऑन करेंगी। 1 मिनट अब मैं जो है क्योंकि हमारे ट्रेनर्स का भी इंट्रोडक्शन सबका हो गया, तो अब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा और आपसे क्वेश्चंस जो लूंगा। जो भी आपकी क्वेरीज हैं तो प्लीज काइंडली अपना हैंड रेज करके आप मुझे क्वेश्चन करें। जी विकास जो हैंड रेज करते हैं काइंडली उनका जो है वो अनम्यूट कर दें माइक। Excuse me, sir. So my name is Amin Nawab and I am from Software Engineering Department. So my question
So my question is that, and class evening. So what will be the timing if we start classes in our campus? So what will be the timing, sir? Because from 3 p.m. we have a class at our campus. So kindly sir timing के बारे में आप थोड़ा सा बता दें. अच्छा, अभी तो क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो टाइम आपको जो है बता दिया गया। इंशाल्लाह जब फिजिकल होंगी तो टाइम ऐसा रखा जाएगा। जरी बात हम यूनिवर्सिटी से बात करके और जो हमारे फोकल पर्सन डॉक्टर ज़िया साहब वो देखेंगे कि आप लोगों की किस टाइम जो है वो फ्री टाइम होता है, उसके मुताबिक आपकी क्लासेस का स्केड्यूल ना हो यूनिवर्सिटी का, तो हम वो टाइम मैनेज करेंगे। तो आई होप कि आफ्टर 1:30 to 2 PM के बाद ही वो टाइम होगा क्लासेस का। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जुबैर अहमद बात कर रहा हूँ। मेरी पहली तो हमारी मादरी ज़बान है, ट्रेनर से रिक्वेस्ट है कि अपनी मादरी ज़बान में सिखाएं तो उससे ज़्यादा। जी जी, मादरी ज़बान में उर्दू में सिखाएंगी। और कुछ कभी होता है कि ज़री बात है कि इंटरनेशनली हम प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर बात है कुछ चीज़ें जो हैं वो अब उस इंग्लिश में भी लैंग्वेज में भी यूज़ होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो ज़ाहिर बात है आपने अगर कंटेंट राइटिंग करनी है तो ज़ाहिर बात है अगर आपको ऑर्डर अमेरिका से आएगा तो वो एक अंग्रेज़ी का आएगा, तो वो इंग्लिश में ही लिखना होगा। तो वैसे हमारा जो हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा जो है अपना मीडियम ऑफ लर्निंग जो है वो उर्दू में ही रखें, तो इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। जी वेलकम जी। और किसी क्वेश्चन प्लीज काइंडली अपने बाकी लोग से अपने माइक ऑफ कर लें क्योंकि जो है वो डिस्ट्रैक्शन होती है। तो काइंडली एक 1 by 1 जो है वो क्वेश्चन अगर करें तो हम भी सुन पाएंगे। जी मेरे साथ फरवा ये साल है। जी सर, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन मैंने ठीक कर दी है आपके नाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी फरवा सर, I have a question about that कि हम we can move from other courses into technical course. एक तो पहले ये कि जब आप अप्लाई कर रहे होते हो तो तीनों डोमेन्स का दिया जाता है कि तीनों डोमेन्स में क्या क्या चीजें पढ़ाई होंगी। पहले कोशिश करनी चाहिए कि आप उस वक्त फाइनल डिसीजन करो, क्योंकि जब हम उसको बाद में डोमेन चेंज करते हैं तो फिर वो सारी बात है पोर्टल से पूरा जो आपने टेस्ट टेक्निकल डोमेन का दिया होता है मगर हम आपको शिफ्ट क्रिएटिव डोमेन में कर रहे होते हैं, तो वो भी एक चीज की ना कंफ्यूजन हो जाती है। तो इस पे ये है कि आप हम जो है वो बहुत कुछ जेन्युइन रीजन हो तो हम डोमेन चेंज करते हैं। वैसे नॉर्मली हम नहीं करते डोमेन चेंज, क्योंकि हम पहले ही काफी चीजें बता देते हैं आपको पोस्ट वगैरह के जरिए कि क्या क्या चीजें जो है किस डोमेन में पढ़ाई जाएंगी। और फ्रीलांसिंग जो है वो तीनों डोमेन में पढ़ाई जाती है। फ्रीलांसिंग आपको तीनों डोमेन में सिखाई जाएंगी, उसमें ये नहीं होगा टेक्निकल डोमेन में फ्रीलांसिंग नहीं सिखाई जाएगी। तो डोमेन तीनों हो उनमें फ्रीलांसिंग तो है वो कॉमन है। बाकी जो है डोमेन वाइज होता है कि उसकी जो है फॉर एग्जांपल PHP या HTML या वर्डप्रेस है वो टेक्निकल में सिखाया जा रहा है, और इस तरह क्रिएटिव में एडोबे इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप इस तरह सिखाया जा रहा है, और कंटेंट मार्केटिंग फनल SEO वगैरह चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो वो चेंज हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा जेन्युइन रीजन होती है उसको हम केस टू केस देखेंगे, मगर हम डोमेन चेंज मुश्किल है वैसे करना। मगर आप अपनी ईमेल कीजिएगा, हम उसको केस टू केस उसको देख के फिर हम कुछ कह सकते हैं। ओके सर, पर ईमेल मुझे किससे कांटेक्ट करना होगा? आप मुझे बेशक ईमेल कर दें या फोकल पर्सन जो हैं आपके डॉक्टर ज़िया साहब उनको ईमेल कर दें, या हमारा जो info.nftp@php.gov.pk ईमेल एड्रेस है उस पर करते हैं। ओके सर, जज़ाकल्लाह। क्योंकि हम जो आपका फेसबुक ग्रुप है जहाँ से ज़ाहिर बात है जूम लिंक आपको आएगा और आपने उसी से जो है वो ग्रुप में कम्युनिकेशन होगी, तो उसमें जो है वो हम सारे एडमिन के लोग हैं NFTP के। आप किसी को भी टैग करके मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्स करेंगे। और मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि आपको ज़ाहिर बात है फ़ी आपने पे करनी थी इस कोर्स के लिए। ये गवर्नमेंट जो है सब्सिडाइज आपको ये कोर्स मुहैया कर रही है। तकरीबन अगर 15,000 पर ग्रेजुएट अगर इसकी जो है हमें एक्सपेंस आ रहा है तो इसमें से 13,000 गवर्नमेंट देती है। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट एक आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही है कि जो कि बिल्कुल एक मीगर अमाउंट आपसे जो है वो ली जा रही है। तो कोशिश करें कि जिन्होंने फ़ी नहीं पे की वो काइंडली अपनी फ़ी जो है वो अभी भी जमा करवा सकते हैं, और हम वेट करेंगे 4 to 5 डेज और, ताकि आप लोग जो है वो फ़ी जमा करवा दें। अगर फ़ी जमा नहीं करवाएंगे तो फिर हमें उस ग्रुप में और फिर आपको ट्रेनिंग से जो है वो रिमूव करना होगा। तो काइंडली अपनी जो है फ़ी ज़रूर पे कर दें, और उसका चलान फॉर्म जो है वो
आप गूगल फॉर्म में भी सेंड कर सकते हैं और डॉक्टर ज़िया साहब को ईमेल भी कर सकते हैं जी। और जिसका क्वेश्चन है तो प्लीज। मेरा क्वेश्चन है इर्तिजा। क्लासेस जो है मलिक ज़िशान का क्वेश्चन है, क्लासेस इंशाल्लाह कल से स्टार्ट हो रही है जी। सर इनका लिंक जूम लिंक जो है वो क्लास शुरू होने से पहले आपको 15 to 20 मिनट्स उस ग्रुप में जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। उसी ग्रुप में से आपने जो है फिर ऑनलाइन उस लिंक के थ्रू आना है। देखो ये सर मेरा क्वेश्चन है इर्तिजा। सर कैन यू हियर मी? जी इर्तिजा, क्या क्वेश्चन है आपका? सर एक तो मुझे ये पूछना है कि जिस तरह दूसरे पाकिस्तान फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें हमें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम हमें क्या नाम है वो आपका एक तो हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद वो हमें क्या नाम है आपकी जो इंटर्नशिप होती हैं उसके लिए अवेलेबल कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये दूसरी सर हमें बात की है कि एज ए यूनिवर्सिटी इनरोल्ड हैं हम, तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी क्लासेस हो रही होती हैं, तो उस सूरत में अगर हमारी क्लास मिस हो जाती है तो उस बेस पे आप हमें किस तरह एंड पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि एज मैं टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ और इंटरमीडिएट मेरा नॉलेज ऑलरेडी है, तो और आपके जो मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन साहब थे उन्होंने उस तरह डिटेल से हमें गाइड नहीं किया कि वो क्या क्या पढ़ाएंगे, और उसके हवाले से सर अगर हमने उनसे कांटेक्ट करना हो तो उसके बारे में बताएं आप, तो क्योंकि हमें कोर्स आउटलाइन सही तरह पता होनी चाहिए। आपको कोर्स आउटलाइन जो है वो इंशाल्लाह कल लेक्चर होगा तो आपको बता दी जाएगी, आप उसमें देख लीजिएगा, तो शेयर करेंगे ट्रेनर। तो उसमें ये है कि आपको जो चीज़ें वो आप पोर्टल पे भी जाएं तो आपको पता है कि टेक्निकल डोमेन में हम क्या पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह डिफरेंट पोस्ट वगैरह हमारी जो है एनएफटीपी ऑफिशियल में भी लगती रहती हैं, जब हम पोस्ट करते हैं तो उसमें भी बताते हैं कि टेक्निकल डोमेन में आपको क्या सिखाया जाएगा, बाकी डोमेन्स में क्या सिखाया जाएगा। बाकी आप टेक्निकल डोमेन में ऐड है फेसबुक ग्रुप में, तो उसमें जो आपके ज़ुबैरुद्दीन हैं वो एडमिन में भी हैं, तो आप उनको किसी टाइम भी जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको पर्सनल जो है आप उसको उनको मैसेंजर पे मैसेज करें तो इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करेंगे। बाकी ये हो गया कि आप लोगों की क्लासेस होती हैं तो टाइम तो ये है कि ये मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं ग्रेजुएट होने के लिए, और आपको सर्टिफिकेट बाद में एंड में दिया जाएगा एनएफटीपी की तरफ से। गवर्नमेंट MOIT की स्टैंप होगी, PIT की स्टैंप होगी, तो वो सर्टिफिकेट आपको इंशाल्लाह जो है आफ्टर ग्रेजुएशन वो आपको जरूर हम मुहैया करेंगे। बाकी ये है कि आप लोग जो है अटेंडेंस आपने जो है वो लाजमी करनी है। अटेंडेंस अगर नहीं करेंगे तो फिर इस ट्रेनिंग का मकसद ही जो है वो नहीं रहता। अगर हमने वीडियोज ही वीडियोज रिकॉर्ड करके आपको दे देनी है और आप जो है या यूट्यूब पे डाल दे, तो इस ट्रेनिंग का फायदा क्या है? वो तो बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं। इस ट्रेनिंग का सबसे बड़ा जो है एक बेनिफिट ही है कि ऑन हैंड ट्रेनिंग होती है, ट्रेनर जो है वो लाइव होता है, आप कभी भी वो आपको लाइव पढ़ा रहा होता है, कभी भी आप उसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और बाद में भी हम छोड़ते नहीं है, मतलब कि आप जो है ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो आपको हम जो है वो कोई भी आपको नहीं रिप्लाई करेगा, कुछ नहीं, ट्रेनर हमेशा अवेलेबल होते हैं। आप बाद में भी हम जो एनएफटीपी एलुमनाई ग्रुप में आप उसमें ऐड होंगे, और अब उसमें 2100 से ज्यादा लोग जो हैं ऑलरेडी ग्रेजुएट जो हमारे हो चुके हैं उसका पार्ट है एनएफटीपी एलुमनाई ग्रुप का। तो आप एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे, फ्रीलांसिंग कम्युनिटी का। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम जरी बात है बहुत सी अपॉर्चुनिटीज भी हम देंगे, हम ब्रांड एम्बेसडर्स भी रख रहे हैं, हम टॉप फ्रीलांसर्स जो हैं हमारा पेयोनियर जो है हमारा एक MOU साइन हुआ है, हम टॉप जो अर्नर होता है उसको जरी बात है कि पैम्पर्स भी मिलते हैं। और इसी तरह आने वाले वक्त में PITB जो है वो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है वो बना भी रहा है, अभी ऑलरेडी वो जो है उनके बन रहे हैं। इसी तरह EN प्रोग्राम है, कोवर्किंग स्पेसेस जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज देती है। तो इस तरह बहुत से जो है वो इनिशिएटिव पंजाब IT बोर्ड के हैं, तो उसमें हम अकोमोडेट कर सकते हैं। और हमारे ट्रेनर्स भी, मैं बताता हूँ, जो हमारे ट्रेनर्स हैं वो रोजगार के कभी स्टूडेंट्स हुआ करते थे, तो स्टूडेंट्स भी हमारे कल को हमारे ट्रेनर्स बन सकते हैं। कल को इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम और एक्सटेंड होगा, हमारे ट्रेनर्स की और रिक्वायरमेंट होगी, तो हमारे MTs और ट्रेनर्स जो हैं हमें इंशाल्लाह वो इसका पार्ट बन सकते हैं। तो आप लोगों के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, बस ट्रेनिंग में आप थोड़ा सीखें और अपना स्किल पॉलिश करें। अगर आपका स्किल फर्स्ट टाइम है तो आप बहुत सी हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं। मैं उधर पिछला बैच जो हमारा है उसमें तकरीबन $5,500 बच्चों ने कमाए, जो उनको फ्रीलांसिंग का पता भी नहीं था न्यूली। फिर ये ड्यूरिंग द बैच बता रहा हूँ कि 5.5 to 2.5-3 माह में जो बच्चों ने कमाए। आफ्टर अगर बैच में आज कैलकुलेट करूंगा जो कि 1 माह बाद, तो माइट भी ये $10-12,000 हो गया हो। तो ये $5,500 उस वक्त है जो वेरीफाइड है, जिनकी स्क्रीनशॉट्स हमारे पास आई ड्यूरिंग द बैच कमाए हैं। तो आप लोगों के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, आप घबराए नहीं, और आप थोड़ा सा ये हो कि अपना जो आपने पेशेंस नहीं आपने खोना, और थोड़ा सा अपने आप को तैयार रखना है, मोटिवेट रखना है, और ताकि आप लोग जो है वो कल को वर्ड ऑफ माउथ ही बनो।
और आपने एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हो, इसमें कोई जो है वो दो राय नहीं कि आप भी अर्निंग उसी तरह कर सकते हो जैसे कि बाकी स्टूडेंट्स ने की है। और $44,000 हमारे ऑलरेडी जो है वो जो अर्निंग कर चुके हैं बच्चे, जो कि ड्यूरिंग द बैच है। बैच के बाद अगर हम कैलकुलेट करें तो ये $1,00,000 शायद ऊपर चली गई हो। तो हम इस पे जो है वो रिसर्च भी करते रहते हैं और ये अपने कॉल्स वगैरह भी अपने स्टूडेंट्स को करते हैं ताकि हम जान सकें कि अभी तक उन्होंने कितनी अर्निंग्स कर चुके हैं, ताकि हम इस प्रोग्राम का इम्पैक्ट और बेहतर कर सकें। जी, और जिसका कोई क्वेश्चन है तो जी आशिर अब्बास मेरे साथ हैं जी। कौन है मेरे साथ? टेक्निकल में सर कुछ लोगों ने टेक्निकल में वो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, तो कुछ लोगों ने मींस दैट जैसे फ्रंट एंड में अप्लाई किया था, कुछ लोगों ने बैक एंड के लिए सेम ग्रुप है उनका सर और सेम क्लास से मतलब ज्वाइन किया। नहीं, डिफरेंट डोमेन है, डिफरेंट टाइमिंग है क्लासेस के, डिफरेंट ट्रेनर्स हैं, तीनों डिफरेंट हैं, तीनों डोमेन डिफरेंट है। आप एक वक्त में एक जो है वो डोमेन में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप टेक्निकल में आपने किया तो टेक्निकली पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम जब हमारी एप्लीकेशन ओपन होंगी तो फिर आप दूसरे जो है कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं अगर हम डी एनरोल करें तो आपको। अस्सलाम वालेकुम सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आशिर, क्या क्वेश्चन आपका? सर आई वांटेड टू नो कि ई रोजगार ट्रेनिंग प्रोग्राम और एनएफटीपी के प्रोग्राम में कोडिंग वगैरह चेक की थी तो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही थी। तो जी मैं आपको बताता हूँ कि क्या मेजर डिफरेंस है इस प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम। जी ई रोजगार और एनएफटीपी के बारे में एक मैं डिफरेंट बताता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसमें हमारा डिफरेंस है। ऊपर से हमारे जो पार्टनर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, वो बेशक किसी भी सेमेस्टर में हो। ई रोजगार में जो है वो 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें पार्टनर यूनिवर्सिटी के साथ कोई ऐसा जो है वो एग्रीमेंट नहीं है। ऊपर से उसमें जो है 14 ईयर एजुकेशन है हमारे प्रोग्राम में, उसमें 35 ईयर एज होती है, हमारे में 40 ईयर एज है। बाकी हमारा जो प्रोग्राम है अक्रॉस पाकिस्तान है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम का है, इसको एग्जीक्यूट पीआईटीबी कर रहा है, इसको फाइनेंस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट करती है, इस प्रोग्राम को MOIT करता है। तो इसका प्रोग्राम पे डिफरेंस है। बाकी ये है कि आप हमारे सेंटर जो है वो GB में भी है, AJK में भी है, सिंध में है 5 सेंटर, इसी तरह बलोचिस्तान में है, खुजार में, तुर्बत में, लोरालाई में, कोयटा में, और इसी तरह जो है वो KPK में, मर्दान, मालाकंड, पेशावर। तो हमारा जो है स्कोप वो फेडरल है, नेशनल लेवल का प्रोग्राम है। जी आई होप के काफी क्लैरिटी होगी। अगर किसी का और का क्वेश्चन है जी जी वालेकुम अस्सलाम शमा अंबर, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इस कोर्स की मैं वेब डेवलपिंग के लिए मैंने जो है कोर्स जो है ज्वाइन किया था और पेमेंट जो है मैंने 7 सितंबर को की थी। तो मैंने जस्ट एक क्यूरी थी, मैंने आपसे पूछनी थी कि 7 सितंबर को मैंने पेमेंट कर दी, बट मुझे 9 सितंबर को मैंने उस टाइम पे ज्वाइन नहीं किया था ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, बिकॉज वो कह रहे थे आपने रियल नेम के साथ करें, तो रियल नेम मेरा फुल चेंज नहीं हो रहा था। तो मैंने ज्वाइन की रिक्वेस्ट हुई, उनको मेल की कि आप मुझे ज्वाइन करें, तो उन्होंने आगे से मुझे जो मेल की उन्होंने कहा आपके ड्यूज़ पे नहीं हुए। तो मैं इस बात पे कंफ्यूज थी, मैंने उनको स्क्रीनशॉट भी सेंड किया जो मैंने पेमेंट की थी उसका। तो उसके बाद उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया ग्रुप में और नोटिफिकेशन भी आई, बट ये कंफर्मेशन नहीं है कि मेरी पेमेंट जो है वो रिसीव हुई है उन्हें कि नहीं हुई। डेफिनेटली तो नहीं है कि ड्यूरिंग क्लास मुझे रिमूव नहीं जिनके हमारे पास प्रूफ है, स्क्रीनशॉट्स हैं, जिनकी ईमेल्स आई हुई हैं, जिन्होंने गूगल फॉर्म पे जो है अपलोड किए, तो सही बात है हमारे पास रिकॉर्ड है, तो उनको हम किस तरह निकालेंगे। हम हमारे पास जिन लोगों का रिकॉर्ड नहीं है और जिन्होंने फी पेड नहीं की है तो हम उनको रिमूव करेंगे। जी मेरे साथ वकास हैं, वकास आप प्लीज काइंडली शमामा अंबर का जो है वो रिकॉर्ड चेक करके इनको बेशक मैसेज या ईमेल कर दें। ईमेल मुझे आ चुकी है, मैसेज भी आ चुके हैं, बस ठीक है, मुझे ज्वाइन भी कर लिया। डॉक्टर साहब एक्सक्यूज मी, शमामा आपने मुझे ईमेल किया अपना जो उसका प्रूफ है, पेमेंट प्रूफ? यस सर मैंने किया है। हाँ चलिए हम उसको कंफर्म करके इंशाल्लाह वेरीफाई कर लेते हैं, डोंट यू वरी। एडिट है, इनकी पेमेंट रिसीव हुई है हमारे पास, इनका स्क्रीनशॉट भी अवेलेबल है, ग्रुप भी ज्वाइन है। ठीक है, ये कंफर्मेशन हो गई है। बाकी जो डॉक्टर साहब भी जो है अपना ईमेल देख लेते हैं, ईमेल इनबॉक्स, तो इंशाल्लाह अगर वकास को आपने भेजी है तो वो वेरीफाई है, तो कोई आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। जिनकी फी पे है उनको तो मसला नहीं है, उनका रिकॉर्ड जो है उन्होंने अगर भेजा हुआ है स्क्रीनशॉट्स वगैरह या ईमेल किया हुआ है तो कोई इशू नहीं है। सिर्फ उनके लिए मैं कह रहा हूँ जिनकी फी पे नहीं है, जिन्होंने नहीं की होगी उनको ऑलरेडी पता होगा कि हमने नहीं की है, तो जिन्होंने की है तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो कल को अगर यूनिवर्सिटीज आएंगे तो फिजिकल भी वो जो है वो डिपॉजिट स्लिप दिखा सकते हैं अगर किसी का कोई इशू आ रहा होगा तो।
जी कासिम जी, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है, आई हो कासिम जी, वालेकुम अस्सलाम। करना चाहते हैं कोई? जी सर कासिम। मैंने जी हेलो कोई जी जी कासिम कासिम जी कासिम, आपकी आवाज आ रही है? आप क्वेश्चन करें, आप अनम्यूट हैं। जी सर, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आवाज आ रही है आपकी कासिम? जी सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आ रही है? जी जी आ रही है आपकी आवाज, आप बात क्वेश्चन करें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास कोई मतलब ऐसे स्टूडेंट्स को आप जानते हैं जिनका ना सॉफ्टवेयर से कोई ताल्लुक है ना कंप्यूटर साइंस से, एंड स्टिल आफ्टर गेटिंग 2.5 विद इन 2.5 मंथ्स वो उन्होंने अर्निंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनने के लिए एक अच्छा क्रिएटिव डिजाइन बनना लाजमी है? ये मेरे दो क्वेश्चन है सर। एक तो मेरा जी कासिम, मैं बिल्कुल आपका मैं कहता हूँ, हमारे पास जो जितने भी लोगों ने अर्निंग्स किया उसमें हो सकता उसमें काफी हैं जिनकी कंप्यूटर की भी स्टडी है, और जिनको ऐसे भी हैं जिनको कंप्यूटर का नॉलेज बिल्कुल नहीं था, उनको इवन फ्रीलांसिंग का ना पता नहीं था कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, तो वो भी जो है वो भी माशाल्लाह 3 मंथ्स में जो है वो टॉप अर्नर्स बन चुके हुए हैं। तो इसमें जरूरी नहीं है कि आपको जो है वो कंप्यूटर बैकग्राउंड होना चाहिए। हाँ, टेक्निकल डोमेन में होता है कि आपने PHP या वर्डप्रेस या HTML पढ़ना है, तो उसमें थोड़ा होता है कि आप थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड हो। बाकी कंटेंट मार्केटिंग में या क्रिएटिव में वो कोई आपका बैकग्राउंड बहुत होना नहीं जरूरी, क्योंकि स्किल है तो वो इंशाल्लाह आपको खुद ही ट्रेनर्स जो है वो आपका प्रोफाइल भी बनाएंगे, आपको बताएंगे कि आपने किस प्लेटफॉर्म पे किस तरह जो है वो अपनी गिग्स बनानी है, और गिग्स बना के उसको किस तरह मार्केट करना है, क्योंकि आपके पास तो पूरा जो मार्केट, समझे कि मार्केट प्लेस पूरी ग्लोबल है, मतलब पूरी दुनिया है, तो आप कहीं से भी ऑर्डर्स पिक कर सकते हैं जो आपको आसान लगे या जो आपको आते हों, तो इंशाल्लाह गाइड करेंगे। इसमें जरूरी नहीं कि आपको पहले से बहुत ज्यादा कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है, मगर ये है कि डेफिनेटली हर किसी को कंप्यूटर जो ऑपरेट करना आता है, और आपको जारी बात है इंटरनेट की भी जरूरत होती है, इंटरनेट के बगैर तो आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। तो ये कुछ 2-3 चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह जो है आगे आके आप देखेंगे, आपको क्रिएटिव डिजाइन में इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे हर तरह से। वो जरूरी नहीं कि आप बहुत कोई अच्छे डिजाइनर हो तो आप क्रिएटिव डिजाइन में जो है फ्रीलांसर बन सकते हो, उसके लिए ये कोई मैंडेटरी चीज नहीं है। बहुत सी मिसालें हैं हमारे पास जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता था, जिनको इवन पता भी नहीं था कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, क्रिएटिव डिजाइन क्या होती है, तो वो आए और 3 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद माशाल्लाह आज वो काफी प्रोग्रेस कर चुके हुए हैं और काफी अर्निंग की हुई है। जी फातिमा खान है मेरे साथ। जी फातिमा, क्या क्वेश्चन आपका? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे लैपटॉप में कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होने चाहिए इसके लिए, इस क्रिएटिव डिजाइन के लिए, या जो भी आप सिखाएंगे इसके लिए? जी विकास, अगर आप हैं तो काइंडली इसका आंसर करें। अच्छा, डिफरेंट डोमेन्स के लिए ना आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। अगर तो आप टेक्निकल डोमेन से हो तो आपको XAMPP की ज़रूरत पड़ेगी, और एक कोई भी आपको कोड एडिटर आपको इंस्टॉल करवा सकते हैं। वो आपके ट्रेनर पे डिपेंड करता है, वो आपको चाहे Notepad++ इंस्टॉल करवाएं या फिर Visual Studio Code इंस्टॉल करवाएं या कोई और उसका अल्टरनेटिव बताएं। इन केस अगर आप हो कंटेंट के, तो उस सूरत में आपको मोस्टली आपको ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसकी स्वीट की। तो आप चाहे उसके अल्टरनेटिव में आप गूगल के जो से अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। थर्ड, आपके पास अगर आप क्रिएटिव डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हो तो आपको Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, ये इनकी मेनली आपको इसकी ज़रूरत हो सकती है। तो वो भी आपको जब ट्रेनर्स बताएंगे कि हाँ जी अब आपने ये कि फर्स्ट आपने कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, और वो उन पे ही डिपेंड करता है कि वो कौन सा पहले आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू लेके चलेंगे। जी थैंक यू विकास, आपने डिटेल में चीजें बता दी जो सॉफ्टवेयर हमारे नीचे यूज होंगे। जी जी सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, मैंने एक क्वेश्चन आपसे करना था कि ड्यूरिंग क्लासेस हम लोगों को फ्रेमवर्क्स पे काम कराया जाएगा कि नहीं? जैसे अगर वेब डेवलपिंग है, अगर PHP है, तो उसके लारावेल जो फ्रेमवर्क है, क्या उसकी भी उस पर भी हमें थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह या कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह करवाए जाएंगे? जुबैर, अगर आप इसका आंसर कर सकें तो बेहतर होगा।
बेटा ऐसे है कि हम बेसिक जो हम करेंगे ना, हम बेसिक पीएचपी पे काम करेंगे, कस्टम पीएचपी पे। जो फ्रेमवर्क्स है, مثلا लारावेल हो गया या कोऑर्डिनेटर हो गया या जो रिएक्ट है, हम उसका हम आपको टच देंगे, यानी मैं उसको इंस्टॉलेशन और बाकी उसके ऊपर बेसिक फंक्शनैलिटी आपको सिखाएंगे। लेकिन जो हम डीपली स्टडी करेंगे वो हमारा मेन मकसद है कि हम पीएचपी को सीखें। जो मेन मकसद हमारा पीएचपी और वर्डप्रेस हमारा मेन फोकस होगा, और बाकी जो जितने प्लेटफॉर्म्स हैं और या बाकी जितने फ्रेमवर्क्स हैं उनको हम सिर्फ टच देंगे, उनको हम डिटेल स्टडी नहीं करेंगे। जी सर, थैंक यू। जी वेलकम। बस ये है कि आप लोग जो हैं, जिन्होंने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किए और जिन्होंने माशाल्लाह अप्लाई किया और फी पे की है, अब क्लासेस आपने लेनी है, क्योंकि आप बहुत से तकरीबन 800-900 एप्लीकेशन हमारे पास आई थी, उनमें से आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया है। तो आप लोगों ने जो है वो काफ़ी लोगों मतलब की जगह ली। अगर आप, हमने लास्ट टाइम भी देखा तो काफ़ी लोग जो हैं वो ड्यूरिंग द बैच 1 हफ्ता या 2 क्लासेस लेके उन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो प्लीज़ काइंडली ये, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो आपने इसका पूरा हक अदा करना है और अपना टाइम, जो प्रोडक्टिव टाइम है, उसको आपने पूरा टाइम देना है और क्लासेस जो हैं वो आपने अटेंड करनी है, क्योंकि लाइव क्लासेस जब आप लेते हो ना, अटेंडेंस पर काउंट होती है। अगर आप किसकी, जो हम 24 आवर्स तक जो है वो वीडियो जो हम ग्रुप में शेयर करेंगे, ये ट्रेनर्स, आप जब लेक्चर खत्म होगा तो 24 आवर्स तक वो लेक्चर अवेलेबल होगा ग्रुप में नेक्स्ट डे तक, जब वो नेक्स्ट लेक्चर नहीं स्टार्ट होता। तो उसमें ये आप जो वो अगर देखोगे, रिकॉर्डिंग देखोगे, लाइव लेक्चर नहीं लोगे तो आपकी अटेंडेंस जो है वो काउंट नहीं होगी। तो प्लीज काइंडली आपने जो है वो लेक्चर लाइव जरूर लेना है। बट सिर्फ जो 24 आवर्स तक लेक्चर हम आप लोगों के लिए अवेलेबल करेंगे, वो इसलिए करेंगे कि आप लेक्चर जब लेते हो तो आप लोग जब लेक्चर लेते हो तो उसके बाद थोड़ी बहुत चीजें होती हैं जो आपको समझ नहीं आती, तो आप लोगों के पास एक वीडियो की सूरत में लेक्चर अवेलेबल हो, ताकि आप उसको देख के अपनी जो भी कोई मसले मसाइल आ रहे हैं, कोई डिफिकल्टी इस चीज़ में पेश आ रही है, तो उसको देख के आप रिपीट उसको जो है प्रैक्टिस कर सको। तो ये इसका मकसद ये होता है। बाकी मैं ना लास्ट 2 क्वेश्चंस दूंगा क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम हम हो चुके हैं इस। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैं कह रहा हूँ बारी बारी कर लें, इसलिए फिर टाइम हमारा और ज़्यादा हो जाएगा। जी मोहम्मद उमर, आप क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? सर मैं पूछना चाह रहा था कि ऑनलाइन का मकसद ये नहीं होता कि टाइम बाउंड ना किया जाए, कि अगर अटेंडेंस लेनी ही है तो बाद में अगर किसी ने लेक्चर ले लिया हुआ है तो उसकी अटेंडेंस उस पर भी हो जाए? नहीं, वो किस तरह हम काउंट करेंगे अटेंडेंस? क्योंकि आप अटेंडेंस देखें ना, बेस पे देखें हमारी डोमेन है फिजिकल, और अगर हमने अभी मैं अगर कह रहा हूँ कि अगर वीडियो देख के अगर हमने प्रोग्राम चलाना है तो उसका मकसद ही खत्म हो जाता है। फिर जो ट्रेनर्स और हमारा पूरा स्टाफ और ये सारी चीजें जो है वो हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर लाइव लेक्चर आपने लेना, लाइव लेक्चर का मकसद ये होता है कि ऑन एंड ट्रेनिंग होती है, आप लाइव जो है वो इंटरेक्शन कर सकते हो अपने ट्रेनर से। और फिजिकल क्लासेस जब होती है, जहरी बात है, फिजिकल क्लासेस जब आप लोगे उसकी कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं आपको मिलेगी, वो तो आप अगर लेक्चर लेने आओगे तो फिर काउंट होगी ना। अगर आप घर बैठे हो या कहीं बैठे हो, क्लास नहीं ले रहे फिजिकल, तो वो कैसे आपकी अटेंडेंस काउंट होगी? तो जहरी बात है, कुछ सीखने के लिए थोड़ा 2.5 मंथ आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर आपने इसमें प्रोग्राम में एनरोल्ड हुए हो तो आपको लाइव लेक्चर्स जो है वो देखने पड़ेंगे। हेलो जी हेलो जी सर, सॉरी मेरा एक क्वेश्चन है, मैं उस टाइम नहीं पूछ सका सर। क्वेश्चन ये है कि रिकॉर्डिंग के हवाले से आपकी क्या पॉलिसी है, क्योंकि अगर किसी दिन मुझे जॉब पे जाना पड़ता है या मेरी कोई और इमरजेंसी हो जाती है तो आप अलाउ करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो रिकॉर्ड कर सकें जूम मीटिंग, या उसका प्रिकॉशंस है कि आप उसको हम बिल्कुल डिस्करेज करते हैं रिकॉर्डिंग्स जो है वो डाउनलोड नहीं करनी, ठीक है। और ये 1-2 बच्चों ने लास्ट टाइम की थी, मगर उनको हमने ग्रुप से भी निकाल दिया और हमने अपने पीआईटी पे किसी भी, अगर हमारा कोई भी प्रोग्राम नेक्स्ट टाइम कोई आ रहा है तो हम उसको बच्चे को एनरोल नहीं करेंगे, उसके लिए हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। तो काइंडली ये ना कीजिएगा रिकॉर्डिंग को डाउनलोड करने वाली, और प्लीज काइंडली अगर ग्रुप में है तो आपने सैंक्टिटी का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि इसमें फीमेल्स भी ग्रुप में है। तो आप लोगों ने कोई ऐसे कमेंट पास नहीं करने कि हमें लगे कि ये नामुनासिब है और हमें कोई कंप्लेन आए। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है ताकि आप लोग इस ग्रुप में जो है वो रिटेन रहो, ये ना हो कि हमें उसको एक्सपेल करना पड़े इस ग्रुप से किसी भी वजह से। तो आपने इस चीज़ को ख्याल रखना है, ट्रेनर्स भी आपको गाइड करेंगे, और बस ये चीज़ें हैं हमारी तरफ से। तो बाकी जी असद बशीर, आपका क्वेश्चन हम ले लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन सीमा अल्ताफ का, ये 2 क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ और इसके बाद हम इसको ओरिएंटेशन को एंड अप करेंगे। जी क्या क्वेश्चन है आपका? जी वालेकुम सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कब तक चांसेस हैं कि क्लासेस फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगी?
इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट कर देंगे हम। अगर ये वीक नहीं तो उसे नेक्स्ट वीक ऑनलाइन होगा, उसे नेक्स्ट वीक तो इंशाल्लाह हम डॉक्टर ज़िया साहब भी मेरे साथ हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से इसमें कंफर्मेशन दे सकते हैं कि हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे, कुछ ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। अगर हम इसको बेशक हाइब्रिड चला लेंगे, मतलब कि हम इसको मे भी हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट की तरफ रिस्ट्रिक्शन हो कि 50% अलाउ हो, तो हम उसको ऐसा करेंगे कि इसको अगर हम 3 दिन ऑनलाइन कर दें और 2 दिन फिजिकल हम कर दें इसको लैब में, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। सर मैं इसलिए पूछना चाह रहा था क्योंकि मैं अब फैसलाबाद से हूँ, तो अगर फिजिकल होनी भी हो तो मुझे 1 या 2 दिन पहले पता वो इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। ग्रुप जो भी हमारी कम्युनिकेशन होगी हम ग्रुप में आपको बताया करेंगे। जो भी पोस्ट वगैरह या कोई टाइम चेंज हो रहा है तो आप ग्रुप जो है फेसबुक ग्रुप आपने जिस डोमेन का भी फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करते रहें, उसमें सब इन्फॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दी जाएगी। जी सिमाब अल्ताफ, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा भी आपसे फिजिकल क्लासेस के से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं ये पूछना चाह रही थी कि कोई ऐसा चांस है कि फिजिकल क्लासेस हों तो साइड बाय साइड हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी हों? देखिए जरा मुश्किल हो जाएगा जुल्फकार साहब, मैं इस पे जरा हमारा जो फिजिकल क्लासेस का जो आपका क्वेश्चन है ये सारे का सारा कंडीशनल है, डिपेंड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर। हमारी यूनिवर्सिटी अगर फिजिकल पे जाती है क्लासेस फिजिकल होंगी हमारी फ्रीलांसिंग की भी, और अगर यूनिवर्सिटी हाइब्रिड पे जाती है 50% उसके साथ स्ट्रेंथ के साथ तो हमारी क्लासेस भी हाइब्रिड होंगी, और अगर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पे जाती है तो हमारी क्लासेस भी ऑनलाइन होगी। तो अभी हम आपको कोई स्केड्यूल नहीं दे सकते राइट नाउ कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेकिन ये है कि जैसे ही वो अनाउंसमेंट होंगी आप न्यूज़पेपर्स के साथ इन टच रहें। अपना जो ग्रुप्स हमारे हैं स्पेसिफिकली जो फेसबुक के ग्रुप्स हैं इसको आप टाइम टू टाइम देखते रहें, पोस्ट उसमें जो आती हैं तो वहाँ पे सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन राइट नाउ हम आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई स्केड्यूल आपसे शेयर नहीं कर सकते कि हम व्हेन वी विल बी गोइंग टू फिजिकल। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और कोशिश हम करेंगे कि आपकी कैसे भी हालात हो कम से कम 2 दिन जो है वो फिजिकल क्लासेस हो जाया करें ताकि आप हैंड्स ऑन ट्रेनर से फेस टू फेस जो है वो कर सकें। कोई भी अभी क्वेरी है तो हम कोशिश पूरी करेंगे। बाकी जो है जरूरी बात है गवर्नमेंट के जो भी पॉलिसी होगी उसके मुताबिक चलना पड़ेगा हमें। और बाकी आई थिंक के सब लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। अगर किसी के नहीं भी मिले तो आप हमें फेसबुक ग्रुप में हम हैं, आप हमें टैग कर सकते हैं, जो भी आप बाय पर्सन हम कर सकते हैं। और बाकी आप लोग जुल्फकार साहब एक आखिरी बात मैं शेयर करना चाहता हूँ बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, कि वो स्टूडेंट जो अपना ये ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, ग्रेजुएट होंगे, हम उन्हें 50% फी रिफंड करेंगे, और वो स्टूडेंट्स जो अर्न करेंगे इवन अ सिंगल पेनी तो हम उनको फुल फी रिफंड करेंगे। एंड आई विश कि हम सब स्टूडेंट्स को फुल फी रिफंड करें, ठीक है। और इन द एंड आई वुड wish you best of luck for this training to students, to NFTP and to our institution as well. Thank you Zulfikar Saab, see you inshallah. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और ये आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जो है डॉक्टर साहब ने और एडी यूनिवर्सिटी ने लिया है जो कि रिफंड का। और आप लोग ये है कि अर्निंग्स जो है वो आपकी जो होंगी हम वेरीफाई करेंगे उनकी स्क्रीनशॉट्स। वो ये नहीं होगा कि अर्निंग्स जो है वो ड्यूरिंग द बैच होनी चाहिए आपकी, तो वो सारी वेरिफिकेशन के बाद हम आपको इंशाल्लाह रिफंड करेंगे। आप कोशिश करें कि आप सब जो है ग्रेजुएट हों, क्योंकि आप लोगों ने अपना जो है अप्लाई किया है, जरी बात है अप्लाई इसीलिए किया कि आपने ट्रेनिंग लेनी है। तो अगर आपने जो है वो ट्रेनिंग नहीं लेनी थी तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ काइंडली आपने अगर अप्लाई किया है और ये ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं तो आप ट्रेनिंग जो है वो अपनी कंप्लीट ट्रेनिंग लें। और क्योंकि 2.5 मंथ का टाइम का पता नहीं लगता, और आप देखेंगे कि 3 मंथ्स बाद, 2.5 महीने बाद आप लोग जो है वो एक स्किल लेकर जा रहे होंगे जो कि आप लोगों के काम आएगा। कल को आप बेशक कोई जॉब नहीं भी करते तो आप लोगों के पास एक स्किल होगा, आप घर बैठे जो है वो अर्निंग कर सकते हैं और जॉब से ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास जो है वो एमटीज भी हैं, ट्रेनर्स भी हैं जो खुद बताएंगे कि मतलब $2,500-3,000 हज़ार पर मंथ कमाते हैं, तो इससे भी ज़्यादा लोग कमाते हैं। तो आप लोग भी अगर $50 या $100 से भी स्टार्ट करोगे तो वो एक माशाल्लाह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब और मैडम नादिया साहबा जिन्होंने जो है वो ज्वाइन की ओरिएंटेशन हमारी बैच 2 की।
और सब स्टूडेंट्स का जिन्होंने जो है अपना टाइम इम्पोर्टेंट दिया और आज जो है वो ओरिएंटेशन को का पार्ट बने, और एनएफटीपी टीम जो कि मेरे साथ रही, और इंशाल्लाह आपसे फिर इसी तरह बातचीत होती रहेगी और इंशाल्लाह आपसे फीडबैक भी लेंगे, और हम आपके सेंटर्स में भी इंशाल्लाह विजिट करेंगे, और ऑनलाइन जो है वो आप लोगों की क्लासेस में भी हम आएंगे। तो प्लीज काइंडली अपना ख्याल रखिएगा, विश यू बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है वो 2.5-3 महीने बाद स्किल लेकर जा रहे होंगे। जी थैंक यू ऑल वंस अगेन, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।